So now, today only Manoj sir told me, many of you are using mobile phones in the class, टाइम पास चालू रहता है. मैं तुमको सोच के बोला है, तुम लोग रिस्पॉन्सिबल है, अपना ध्यान रख सकते हैं. तुम लोग इसमें भी अगर क्लास में मोबाइल फोन यूज करता है, टाइम पास करता है, मैच वैच देखने बैठ जाता है और लगता है कि बाद में काम हो जाएगा, तो नहीं होता. I'm telling you a warning in advance. If you get it, it is well and good. फिर भी तुमको फोन यूज करने का है, तुमको लगता है you are responsible enough and intelligent enough that you will be able to take care of both the things simultaneously, go ahead. It is not going to happen, for sure. Okay, you are screwing up your CA foundation from the beginning itself. And CA foundation and CA is not a joke. Still the result is 1%. I'm telling you frankly, 100 जन फाउंडेशन क्लियर कर लेगा, 100 जन फाउंडेशन क्लियर कर लेगा, उसमें से सीए फाइनल क्लियर करने वाला इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एक ही बंदा होने वाला. 1% रिजल्ट है अभी इंस्टीट्यूट का पैन इंडिया. इट इज अ फैक्ट. 100 स्टूडेंट्स क्लियरिंग फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. कंसिडर यू गाइस, यू आर 40. 100 स्टूडेंट्स क्लियरिंग फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, 100 स्टूडेंट अगर क्लियर किया, घाटकोपर से अगर 80-90% जन भी क्लियर किया, उतना भी नहीं आता. घाटकोपर का एवरेज रिजल्ट इज 50-60%. अपना क्लास का 100% आता. तुम लोग में से सपोज 100 का 100 निकल गया, वेल एंड गुड. बट आईसीआई के हिसाब से 25% रिजल्ट है फाउंडेशन. कितना रिजल्ट है? 25%. तो इमेजिन करो, 100 में से 25 जन पास हो रहे हैं, वो 25 जाता है इंटर में, वो 25 जाएगा इंटर में. इंटर में द रिजल्ट इज 15-20%. 15-20%. 25 का 15-20% कितना होगा? 5 जन. एंड फाइनल में भी रिजल्ट इज 15-20%. तो 5 का 15-20% कितना होगा? Then the result is that. So don't take the course lightly at all. If you are still using mobile phone, watching match, checking the scores, solving maths का questions on Google and writing the answers blindly, या accounts का कुछ भी टाइम पास करने के लिए फोन यूज करता है, कैलकुलेटर की जगह पे फोन यूज करता है, all a waste. Earlier you become responsible, the better. कैसी है सबके पास खुद का? किसी के पास नहीं है? Don't use phone, use friends calculator. That's better. फोन का हैबिट निकाल लो. सोचेगा आईपीएल था, क्या आईपीएल के बाद 100 दूसरा चीज आने वाला. ये टेस्ट सीरीज है, वो वनडे सीरीज है, वो T20 कुछ ना कुछ चालू ही रहने वाला. वो हैबिट ही निकाले. पढ़ाई के वक्त you only studies, nothing else. Okay, now we started with rectification of errors, right? Is it clear? Rectification. What is rectification? Tell me. What is rectification? Correction of mistakes, right? Yes. Correction of accounting mistakes. Now, tell me one thing. List all the types of errors. You guys remember what are the types of errors? Principal and clerical. Clerical are further into 3 types. Omission, commission, compensation. Omission, commission and compensation, right? Yes. Tell me what are errors of principal, how will you identify them? Long term and short term. When you mix up capital items with memory items, that's error of principal. What is omission? रिकॉर्ड ही नहीं किया. अगर कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरा भूल जाए, पार्शियल ओमिशन मतलब डेबिट है क्रेडिट
That's partial omission, right? What is error of commission? किया लेकिन गलत, either wrong account, wrong amount, or wrong site. And what is compensating error? It's not a single error. These are two errors committed simultaneously, such that their debits and credits get nullified. Their debits and credits get nullified. Then it is called compensating error. Correct. Now, tell me another variation of these type of errors we saw, that was two-sided errors and one-sided errors. What are two-sided errors? Which cancel off. No, debit and credit are affected equally. Debit and credit are affected equally. So trial balance remains unaffected due to the presence of these errors. Debit and credit same में से affect होता है. They are called two side. Trial balance इनको detect कर पाता है कि नहीं कर पाता है? नहीं कर पाता. So error of principal and compensating errors. These are always what? Two-sided. Always two-sided. No two thoughts about that. इनके वजह से ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ने वाला, इसलिए मैंने बोला भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर्स इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड आर प्रिंसिपल एरर्स, क्योंकि जितने मेजॉरिटी फ्रॉड्स होते हैं बिजनेस में वो प्रिंसिपल के एरर्स के थ्रू होते हैं. क्योंकि पूरे बिजनेस, इतना बड़ा कंपनी, इतने सारे प्रॉफिट्स, इतनी जबरदस्त बैलेंस शीट, करोड़्स ऑफ रुपीस, उसको हिला के रख देना, उसको पूरा ढांचा ही चेंज कर देना, अच्छा बिजनेस को श्रिंक कर देना या खराब बिजनेस को ग्लोरीफाई कर देना. ये कैसे होगा? एक्सपेंस को एसेट में दिखा दो, एसेट को एक्सपेंस में दिखा दो. बिगेस्ट कॉमन वे ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, प्रिंसिपल. ओके, एरर में फ्रॉड, इंटेंशनल मिस्टेक इज अ फ्रॉड, अनइंटेंशनल मिस्टेक इज एन एरर. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो इंटेंशनली करता है वो फ्रॉड बन जाता है. देन द सेकंड वन वाज omission and commission. Are they two-sided or one-sided? Omission and commission, are they two-sided or one-sided? Omission and commission, they are both. Complete omission is two-sided, but partial omission is one-sided. Omission, complete omission is two-sided, but partial omission is one-sided. What about commission? Can it be two-sided, one-sided, or both? It can be both. Because if the amount is different in both the accounts, at the same time, दोनों में same amount लिख दिया, 10,000, 20,000, 30,000, then it is two-sided. But एक ही account में लोचा है, debit में लोचा है, credit में नहीं है, 5,000, 50,000, 50,000, 5,000, then it becomes a one-sided. Is it clear? So commission and omission can be both, one as well as two-sided. Sorry. Then we also saw how do we go about the rectification process? How do we go about the rectification process? So process remains same across the types of errors. Any damn error you need to rectify by using the same principle. It's a two-way process. Cancellation of wrong and inclusion of right. Cancellation of wrong and inclusion of right. How do you cancel a wrong? Reverse it. Debit to credit, credit to debit. How do you include something right? Original debit. Debit to debit, credit to credit. So the format remains same. Wrong, reverse, correct and rectify. Write the correct entry, write the wrong entry, wrong को उल्टा करो and rectify it. Very simple. Just by doing the right entry and the wrong entry, your काम is done in rectification. अब उसे right entry पता होना चाहिए और wrong entry. तो right भी तो आपको मेजॉरिटी आता ही है, क्योंकि जर्नल आता है आपको. तो right भी आना कोई बड़ी बात नहीं. लोचा किसमें होता है? wrong. मिस्टेक ढूंढने में लोचा होता है. तो उसके लिए थोड़े hints फॉलो करने. अगर कोई बुक में एंटर करने का मिस्टेक किया, बुक में, जर्नल में, तो दोनों रॉन्ग है, डेबिट और क्रेडिट. अगर डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड ऐसा रॉन्ग दिया है, डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड ऐसा रॉन्ग दिया है, तो एक में लोचा है, तो एक अकाउंट में गड़बड़ है, तो वो लेजर का मिस्टेक. समझ में आया? कास्टिंग एरर है तो वो भी लेजर का मिस्टेक है, एक अकाउंट में गड़बड़ है. इज इट क्लियर? नाउ रिमेंबर दिस, all of you. If it is a two-sided error,
डेबिट क्रेडिट दोनों में गड़बड़ है, तो विल यू नीड सस्पेंस अकाउंट टू रेक्टिफाई? हमने 2 सम किए थे स्टार्टिंग में, 3 किए थे, वो तीनों 2 साइडेड थे, उसमें कोई सस्पेंस का नाम। बट जब 1 साइडेड एरर कमिट होता है, 1 साइडेड, तो क्या होता है? डेबिट हैवी हो जाता है या क्रेडिट हैवी हो जाता है? तो जब वो एरर ट्रायल बैलेंस में जाता है, तो विल योर ट्रायल बैलेंस टैली? Imbalance. So that imbalance creates a gap in the trial balance. That imbalance creates a gap in the trial balance. और वो gap fill up करने के लिए हम क्या डाल देते हैं? Simple as that. जब वन साइडेड एरर होता है तब गैप क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है ट्रायल बैलेंस में, तो उसको फिल अप करने के लिए सस्पेंस आ जाता है। तो अभी सस्पेंस आने का मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन साइडेड एरर, सो यू सर्च द एरर and then you rectify the one-sided errors with the help of every one-sided error needs suspense account to rectify itself. At least after trial balance. Before trial balance में हम लोग डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, वो बताऊंगा बाद में। आफ्टर ट्रायल बैलेंस जब आप रेक्टिफाई करते हो तब आपको सस्पेंस अकाउंट चाहिए टू रेक्टिफाई वन-साइडेड एरर। टू रेक्टिफाई once you have rectified all the one-sided errors, what will happen to suspense? It will nullify, it will tally itself. तो एक बार सस्पेंस टैली हो गया, इसका मतलब क्या? ऑल वन साइडेड एरर्स आर रेक्टिफाइड। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। फर्नीचर खरीदा आपने 10,000, फर्नीचर में लिखना भूल गए, कैश में लिखा, फर्नीचर में नहीं लिखा, तो क्या हुआ? करेक्ट करना था फर्नीचर टू कैश 10,000, आपने डैश टू कैश कर, फिर रिवर्स किया तो कैश टू कैश, रेक्टिफाइड क्या होगा? फर्नीचर मतलब फर्नीचर को डेबिट देना था, वो आपने नहीं दिया था, तो अब आपने दे दिया, तो वो रियल डेबिट आ गया फर्नीचर। और क्रेडिट किसको दिया? सस्पेंस को क्रेडिट दिया। क्यों सस्पेंस को क्रेडिट दिया? क्योंकि जब आपने फर्नीचर को डेबिट नहीं दिया था पहले प्लेस में, तब डेबिट में गैप क्रिएट हो गया था, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में गैप क्रिएट हो गया था, और वो गैप पे कौन बैठा था? तो बिफोर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस वाज सिटिंग ऑन द डेबिट साइड, और अभी रेक्टिफाइड करते वक्त आपने क्या किया? फर्नीचर को सस्पेंस, यू गिव इट अ क्रेडिट, तो फर्नीचर आ गया और सस्पेंस चला। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स, इज एज सिंपल एज। जिस चीज को डेबिट नहीं मिला उधर सस्पेंस बैठ गया डेबिट में, जिस चीज को क्रेडिट नहीं मिला उधर सस्पेंस बैठ गया क्रेडिट में। तो हम लोग रेक्टिफाई के वक्त क्या करते हैं? उस एक्चुअल चीज को डेबिट और क्रेडिट देते हैं और सस्पेंस को रिवर्स करते हैं, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का, एंड वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? नलिफाई हो जाता है। आज समझ में? दैट्स हाउ सस्पेंस वर्क्स, एंड एट द एंड सस्पेंस टैली। ओके, सो वी डिड वन सम आल्सो विद रिस्पेक्ट टू सस्पेंस, राइट? सस्पेंस का एक प्रॉब्लम हमने किया था, वो टैली भी हुआ था, एक ही किया था ना। Take another sum now with suspense. Today all the sums are with suspense. Most very important ones. 18 पे कौन रखा है? ठीक है लोग। लक्ष्मी को गाया भी बोले। अठारह 24 पेज का बनता Wait, I tell you. All of you take page 44, sum number 11. Page 44, sum number 11. देखो, page 44, sum number 11. नहीं, ये बना हुआ भी। आप है ना, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ, आप डायरेक्टली भी रेक्टिफाइड एंट्रीज कर सकते हो, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट ना भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि उसका कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स किसका? आपका रेक्टिफाइड एंट्रीज का। बट स्टिल एडवाइजेबल है कि आप रॉन्ग रिवर्स करेक्ट करो, आपके भलाई के लिए, कुछ मिस्टेक नहीं हो। अगर आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, मेरे को आता ही है तो करो, रेक्टिफाइड एंट्री करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके,
DRS में एरोस का कोई मार्क्स नहीं है, इधर रॉन्ग रिवर्स करेक्ट का कोई मार्क्स नहीं। हो सके तो बनाओ, बेटर होएगा आपके लिए। ओके, जमता है तो ट्रायल बैलेंस शोज द डिफरेंस ऑफ 689 इन द डेबिट कॉलम। मतलब क्या है इसका? ट्रायल बैलेंस शोज द डिफरेंस ऑफ 689 इन द डेबिट कॉलम। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है? डेबिट कॉलम में दिख रहा है। तो गैप इज इन डेबिट कॉलम, गैप इज इन डेबिट कॉलम। सो दैट मीन्स व्हाट हैज हैपेंड, व्हिच साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ग्रेटर? क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट। समझो क्रेडिट में 10,000 है तो डेबिट में 10,000 में 689 कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 9311 है डेबिट का टोटल। तो गैप किधर है? तो सस्पेंस किधर बैठा रहेगा? डेबिट। गैप फिल करने के लिए आपने क्या डाल दिया? कभी कभी बोलेगा इट शोज द डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड या डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड। कभी बोलेगा डेबिट इज हैवियर देन क्रेडिट, डेबिट इज हैवियर देन क्रेडिट। तो सस्पेंस किधर है? क्रेडिट। क्रेडिट इज हैवियर देन डेबिट, तो डेबिट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इधर किधर बैठा है सस्पेंस? सस्पेंस क्या है? डेबिट में। क्यों? इट शोज द डिफरेंस ऑफ 689 इन द डेबिट कॉलम। मतलब डेबिट में ही गैप है। ऐसा नहीं बोला कि डेबिट बड़ा है। समझा? इंग्लिश का खेल है थोड़ा सा। डेबिट में गैप है, डेबिट में गैप है। सो सस्पेंस इज हैविंग व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अंडरस्टूड? ऑलराइट। नहीं, वो बाद में नरेशन के साथ बाद में करेंगे, अभी विदाउट नरेशन। नो नहीं नहीं नहीं, एक कल ही तो बात किया ना, एक तो सब में ही नरेशन वीडियो नहीं देगा। ओके चलो, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट रेक्टिफाइड। नाउ लिसन, goods worth 450 were sold to Desai on credit. This was recorded in sales book but was not posted to Desai's account in the ledger. What is the correct entry? Desai to sales 450। सेल्स बुक में तो किया लेकिन देसाई को लिखना भूल गए। और इज द रॉन्ग एंट्री? डैश टू सेल्स। व्हाट इज द रिवर्स? Sales to dash. And can you cancel out or anything? Sales is gone, so what are you left with? Desai to suspense 450. Did you get this? लोचा क्या था? देसाई को डेबिट नहीं दिया था, देसाई को डेबिट नहीं दिया था। गॉट इट? दे दिया और क्रेडिट वेंट टू सस्पेंस। Goods were 225 were returned by Mohan. The amount was credited to his account but was not entered in the return inward book. ये एकदम फालतू मिस्टेक किया उसने। नॉर्मली पहले किधर रिकॉर्ड होता है? रिटर्न इनवर्ड जर्नल में होता है, फिर लेजर में करते। भाई ने क्या किया? लेजर में डाल के आया, जर्नल खा गया। अच्छा, ऐसा मत सोचता कि नो एंट्री है। क्यों? क्योंकि अकाउंट में लिखा है। तो कौन सा अकाउंट में लिखा है? नहीं पढ़ो, मोहन में लिखा है, रिटर्न इनवर्ड में भूल गया। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड बुक में भूल गया तो क्या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? अगर कैसे पोस्ट करते हैं उधर से बुक से अकाउंट में, याद है आपको? टोटल लिखते हैं। तो अगर सेल्स रिटर्न बुक में नहीं हुआ तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। अगर कोई एंट्री परचेज बुक में हो गई है तो क्या वो परचेज अकाउंट में हुई है? हाँ हुई है। गाइस लिसन, अगर कोई एंट्री सेल्स बुक में हो गई है तो वो सेल्स अकाउंट में भी हुई है। अगर कोई एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में हुई है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी हो गई है। अगर कोई एंट्री परचेज रिटर्न बुक में हुई है तो वो एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट में भी। क्यों 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 ऐसा? उधर टोटल ही रहता है, टोटल स्टैंड है। तो अगर रिटर्न इनवर्ड बुक में नहीं हुआ मतलब रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में भी नहीं हुआ। ओके, ये चार बुक्स ऐसे ही है। ऑल्सो कैश बुक, अगर कोई एंट्री कैश बुक में हुई है ना, मतलब वो कैश बैंक अकाउंट में भी हो ही गई है। सुना
क्या बोला? ध्यान से सब लोग बोर्ड पर देखो। अगर कोई एंट्री परचेज बुक में हुई तो परचेज अकाउंट में हो गई। सेल्स बुक में हुई तो सेल्स अकाउंट में हो गई। परचेज रिटर्न बुक में हुई तो परचेज रिटर्न अकाउंट में हो गई। सेल्स रिटर्न बुक में हुई तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हो गई। कैश बुक में हुई है तो कैश और बैंक अकाउंट में हो गई। उसको अलग से पोस्ट करने का वो मेंशन करेंगे। इज इट क्लियर? कीप दैट इन माइंड। तो इसका करेक्ट एंट्री क्या है? Goods returned by Mohan. Correct entry is sales returned to Mohan 225. Am I right? What is the wrong part? Dash to Mohan. Is that right? Hello. Reverse speed where you get what? Mohan to dash. Can you cancel out of anything? What are you left with? Sales return to suspense 225. Sales return to suspense. हाँ बुक में नहीं किया लेकिन वो लेजर में पोस्ट करता है। दिया है ना? That's why I said it. But it's a mistake. हाँ, rectify है ना? So practically if you are not doing in journal, ledger में करना possible नहीं। But इधर दिया है तो you have to take it at face value. कुछ भी mistake हो सकती है। अभी मैंने कबर्ड का दिया क्रेडिट में, आपने रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर, बट मैं परचेज बुक में डाल दिया। नॉट पॉसिबल, बट है मिस्टेक। तो लुक एट इट एज मिस्टेक में तो ऐसे ऐसा मिस्टेक देगा आंख में से आंसू आएगा, बट इट इज अ मिस्टेक। और कभी भी लेजर दिया ना तो लेजर सुपरसीड्स जर्नल। लेजर में हो गया तो हो गया, तो वहां से ट्रायल करेंगे। जर्नल में नहीं हुआ, लेजर में मतलब ट्रायल करेंगे इंटरव्यू में। बोलो 1 मिनट आगे तो पढ़ो। Ram Stores paid 660, but their account was credited by 606. अच्छा बताओ, Ram Stores paid us. What is the correct entry? Cash to Ram Stores 660, but their account was credited by 606. तो लोचा किसमें? कैश तो बराबर है और ये रॉन्ग है। कैश टू Ram Stores टू डैश कैसा? हाँ हाँ